नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट ने उम्मीदों से ज्यादा बौछार कर दी है। मोदी सरकार से मिडिल क्लास को राहत देने की मांग की जा रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास को मालामाल कर दिया है। इनकम टैक्स की सीमा को एक साथ इतना बढ़ा दिया है कि 12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी देश में 1 लाख महीने तक की कमाई करने वालों को जीरो इनकम टैक्स भरना होगा। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत की गई है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए ही रखा गया है। इस हिसाब से नया टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए 12.75 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न को अब 4 साल तक भरने का विकल्प भी दिया गया है। मध्यम वर्ग को एक और बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने 4 साल तक में रिटर्न भरने की भी राहत दी है। बजट में यह भी ऐलान किया गया है कि अब 2 प्रॉपर्टी होने पर टैक्स पेयर्स पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट में किसानों के लिए पिटारा खोल दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी किसान अब 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। वहीं किसानों के कई बजट में और भी कई घोषणाएं की गई हैं। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। साथ ही डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। साथ ही यूरिया प्लांट खोलने का ऐलान किया गया है। इससे किसानों को कम दर पर यूरिया मिल सकती है। तो इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। बजट के बारे में और चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. UDAN has enabled 1.5 crore middle class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4.
improve irrigation facilities, and 5, facilitate availability of long-term and short-term credit. ठीक है, लेकिन जो हमारे किसान को MSP चाहिए था वो नहीं दिया। और न्यूक्लियर की बात की, हरियाणा में हमारा गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट कब से पड़ा है, उस पर कुछ हो नहीं रहा। बहुत से मुद्दे हैं, गरीबों के आवास के लिए कोई बात नहीं, मनरेगा की कोई बात नहीं। अभी आगे देखेंगे, चुनाव है बिहार, दिल्ली, उसके लिए ये सब नजर आ रहा है। मैं कहूँगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है, ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। बिहार में चुनाव है, इसलिए सपना बेचने का काम जरूर हो रहा है, लेकिन आज जो किसानों की माली हालत है, मजदूरों का जो हालत है, छात्र नौजवानों का हालत है, गरीब लोगों का जो महंगाई की मार से पिस रहे हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं है।